Hello and a very warm welcome to my new guest to the Values Workshop podcast. I have with me Mr. Ajay Mehta, who's a professor, and we are going to talk about evolution through education. Uh, while it sounds like a wieldy and heavy topic, I have a very basic question to start with. Uh, when we were studying, sir, it was very clear that we were being educated in a certain kind of knowledge which was for exams and a certain kind of faculty of understanding that particular subject. And then there was also a lot of learning happening with friends, with other sources of knowledge, uh, including movies and music and newspapers. Uh, so where we were being getting ready for the real world, so to speak, how to be uh, street smart, how to exchange ideas. Uh, Now, with the changing scenario of so many media influencing us, uh, and the timeliness of knowledge being available to us 24 by 7, so there is no need for a class, no need for a bench or a blackboard. Uh, we are aware of so many things in so many subjects uh, at a click, literally. And the amount of information, the amount of uh, intensity of the subject itself is also quite vast, from the lowest to the highest point of uh, mastery over a subject is available to us. But there seems to be a lack of responsibility, which I find even in myself, uh, in terms of consumption. So while I'm consuming it, I'm not responsible towards what I'm seeing. I am only happy that I am watching a 1 minute reel or a 30-minute video or even content that is featured on my channel, which is values based. But I don't engage with it on a personal level and sit with the topic, use my intellect to deal and engage with the whole uh, subject as it is. What do you have to say about the present scenario of how we are consuming knowledge these days? नमस्ते, जय हिंद। आपके सभी व्यूअर्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया। Thank you, sir. As you said it, it's a very heavy question you asked, and the topic you have selected is a it is a very deep discussion we are going to have on this. Okay. Knowledge today has a very different meaning altogether, and now what we are facing as a professor, as a teacher, I'm coming across that the students these days are very smart and they are picking up things very fast. That is the first thing. Second thing is they have so many things and so many avenues, so many scope from which they get their knowledge. ये एक बहुत बड़ी ऐसे you can say it's an achievement also, but on a face of it, when you see an iceberg, 1 feet ऊपर रहता है, बाकी 11 feet नीचे रहता है, तो this is the same thing, same scenario. The knowledge is good, it's used for good चीजों के लिए, लेकिन उतना ही खराब है बाकी के जो अंडर वाटर 11 जो फ्लोर्स हैं या 11 फीट है। हमें what we are coming across these days is we have to filter those knowledge, those information. वो फिल्टर जो है वो कौन लगाएगा और वो फिल्टर कहाँ से आए? आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है. Whatever you said is absolutely right, because you have so many things to learn. Every
नूक एंड कॉर्नर, जैसे अगर आप बैठे हो, यू जस्ट स्क्रोलिंग योर फोन ऑन इंस्टा और समथिंग लाइक दैट, फेसबुक पे शॉर्ट्स में अगर शॉर्ट रील्स देखते हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, बट यू हैव नो वे टू फिल्टर दोज इंफॉर्मेशन. सी, नॉलेज, इवोल्यूशन थ्रू नॉलेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो आपने सब्जेक्ट मेरे साथ बात करने का सोचा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंसान जो है, ही स्टार्टेड लाइक एकदम रॉ था, एंड ही डेवलप्ड थ्रू द एजेस, स्लोली एंड स्टेडीली. वो जो स्लो और स्टेडी डेवलपमेंट था, इवोल्यूशन, वी कैन कॉल इट इवोल्यूशन बिकॉज इट्स अ स्लो वन डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट है ना. जैसे कि हम नॉलेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, कि जो फादर है उसको उसके फादर ने दिया था और ये बंदा अपने सन को दे रहा, सो इट इज पासिंग. तो ये चीज जो है नॉलेज का, इट हैज पास्ड थ्रू एजेस, लाइक वो एवोल्यूशन था. Education is giving that knowledge to the person who is receiving it. तो एक हमारा एक कल्चर था कि हम वी आर रिसीविंग द नॉलेज फ्रॉम आवर एल्डर्स. हम लोग उनसे कुछ सीखते थे. वो जो सीखना होता था, दैट वाज आइदर इन द स्कूल और एट होम, लाइक स्कूल में टीचर्स हुआ करते थे, घर पे पेरेंट्स हुआ करते थे. अब ये जो चीज हो गई है ना सर, अभी जो है, इसमें कौन टीचर है, कौन क्या बता रहा है, कुछ पता नहीं सर. ऐसे हो गया है कि जो पहले का जो नॉलेज था, इट वाज फिल्टर्ड बाय द टीचर्स एंड द पेरेंट्स. आज का जो नॉलेज है वो मोबाइल आपको देता है, इंटरनेट देता है, आपकी सोशल मीडिया आपको देती है. अब वहां पर जो द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, or the student, you can say, in one sense. Even I am a student these days, because even I am learning so many things Yeah. every day. Now, बहुत, even I am not, मुझे पहले ऐसे लगता था कि हाँ, कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पहले ऐसे लगता था, ओ यार, आई नो इनफ ऑफ थिंग्स, अब ठीक है, ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कंपनी सेक्रेटरी करा हुआ है, तो उसके बाद फिर मैंने लॉ भी किया हुआ है. तो मैं सोच रहा था कि नहीं ठीक है, बस है, अब इनफ, अब अपनी दाल रोटी तो आराम से चल जाएगी. बट नो, टुडे आई फील दैट माय नॉलेज इज नॉट इनफ. व्हाट आई नो इज नॉट इनफ. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड विच आई थिंक आई शुड नो. नॉट एवरीथिंग, वो तो जरूरी नहीं. मैं वी कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट ऑल्सो. जैसे हम हमारा तो छोटा सा गागर है, तो समंदर में हम डालते हैं जितना पानी ले सके उतना, बट स्टिल हमको ऐसे लगता है, वी आई फील कि अरे वी नो वेरी लेसर थिंग्स, बहुत कम जानते हैं. ये जो चीज हो गई है, इसमें एक द पॉइंट हैज कम दैट वी शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दैट अब वो चीज सीखने की जरूरत. अब हम जो इवोल्यूशन की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज बहुत है, आपके आसपास बहुत एवेन्यूज है, सो मेनी, बहुत सारे स्कोप हैं, यू हैव plenty of things, but the problem arises when you start picking up the wrong things. आज वो बड़ी तकलीफ हो गई है. अभी तक 15-20 साल तक जो भी चल रहा था, आई एग्री, इट वॉज वेरी स्लो एंड स्टडी. टुडे इट इज वेरी फास्ट, एंड दैट इज गुड ऑल्सो. एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है. एक छोटी सी पॉलिटिकल चीज इसमें डालने की आपसे इजाजत चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है अभी, उनका एक अलग फंडा है. वो जो सोचती है, वो सोचती है कि हमारा यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पीपल, और उसमें हम जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा है. आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज बिकॉज द पॉपुलेशन. We don't have avenues. The government cannot employ everybody. So the government has started focusing on
the knowledge. It is asking every young students, every young man who is capable, even not young, हमारे मेरे आपके जैसे भी लोग यहाँ पर, उनको भी इनवाइट करती है सरकार कि आओ और अपना स्टार्टअप शुरू करो. Now what is this startup comes to? Again I am continuing in this political arena. उसी चीज में आगे जा रहा हूं थोड़ा सा जी with your question, sir, कि ये जो है ये आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए की कोशिश है. अब ये नॉलेज का सही इस्तेमाल करने का एक रास्ता सरकार ने ढूंढा है. सरकार रिजर्वेशन के थ्रू या हर किसी कोई भी एवेन्यूज के कोई भी एक तरीके से इट कैन नॉट एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. It is not a employer actually. It has to create such a situation where the people start their own enterprise and employ others. That is what this government is doing. And that is what had happened in China. चाइना के अंदर आप देखो, हम कभी कभी देखते हैं सर, मैंने आपको एक चीज बोला कि वी पिक अप द नॉलेज, इंस्टा के ऊपर से, या हम नॉलेज पिकअप करते हैं और हम उसमें फिल्टर लगाते हैं. और फिल्टर कैसे लगता है सर? अब हम वहां पर कुछ रील्स आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये नया प्रोडक्ट है, आप बाथरूम के अंदर ये लगाओ, ऐसे फिट करो और आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी. तो वो सारे स्टार्टअप हैं सर. दे आर ऑल न्यू आइडियाज दीज चाइनीज आर inventing or investing their efforts in. So this is what is happening and this government is asking for us to do. Coming back to our topic, यहाँ पर ये जो knowledge है उसका filter हमको लगाना बहुत जरूरी है. और आज का जो evolution, हम evolution नहीं बोलेंगे, इसको हम revolution बोलेंगे, because these things are going so fast. बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है. जो आज हम कर रहे हैं, पता नहीं कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें होती रहती हैं दुनिया में, तो कभी कभी ऐसे सवाल उठता है कि अरे यार कल तो सब खत्म, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे मालूम नहीं. लेकिन ऐसा उम्मीद करना चाहिए कि सब लोग, nothing is going to happen and we have to pursue the knowledge. और बहुत स्पीड में वो हमको मिल रहा है. लेकिन सर फिर से बोल रहा हूँ एक बार, I'll repeat, कि उसको फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम उससे सीखते हैं. हमारे लिए इस इन्फॉर्मेशन के लिए कोई टीचर नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है कि वो हमारे ऊपर नज़र रखे कि हम क्या कर रहे हैं. अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो वारे न्यारे हो जाएंगे सर. Okay. Yes. So filter is one thing that I appreciate, but there is a adjacent line of thought that I have. I did mention that I am a parent to a teenager, and often the word cool is used regarding my attempts to understand what my teen wants or what their friend group wants, or kids in my building appreciate my efforts to befriend them. And yet I have clearly demarcated to my kid at least that coolness is not a requisite for good parenting. So that is the filter part of it. What I want to ask you is, yet this coolness helps them come and talk to me about things that they are being troubled by, about knowledge that they don't fully understand, or at least whatever they understand, they come and talk. So it's very often I find not only my kid but their friend group, somebody or the other comes and talks about things that they are unable to understand about the adult world and the fast changing world that is happening. How do you as a professor who has the
uh, I'm using the word very loosely, burden of passing on knowledge in a structured fashion to a certain set of the next generation. How do you ensure that they feel free enough to come to you and then be educated about the filter? So while I am agreeing to the filter point, but the recipient of the knowledge and the filtering of it, how do you ensure that they feel comfortable, or there is a word that is bandied about very often, safe space. So I mean safe space in the sense of feeling comfortable to talk about knowledge that is huge and beyond their understanding, or at least whatever they've understood of a subject, of the world, or of professional or personal interest. That is a separate point, but knowledge nevertheless. So would you tell me something about your attempt to, well, be a friend is what they call it, to your students and to the young generation? Can you tell us something about your attempts in that direction? Or do you think it is not necessary at all? It's a very good question, actually. As I was speaking about the filters and all that in your last question, when I was answering that, we are discussing that. Uh, Nowadays, as you say that there is a lot of difference. जब students हमारे पास आते हैं, तो it's actually a very difficult job right now. These days, it's a difficult to be a teacher. I'm telling you very frankly. होता ये है कि see, in the olden days, we used to approach our teachers and with the respect, please sir, ऐसा ये जरा नहीं समझ में आ रहा है, please explain this. I have not understood this properly. That was the point that we used to do. These days, it is not that way. The teacher, or see, I'm saying it teacher, but please connect or assume it to be a parent also. You should be. I'm not addressing directly to the parents, but it's like you understand it that way also. अब होता क्या है कि as a teacher, I have to be very smart. I'm telling you. जो मैं बता रहा था ना कि मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी सीखना है, और मैं I feel that I don't know so many things in this world. तो ये एक इसमें से एक चीज थी कि we have to understand the students. The more better you understand your students, more the students are going to love you. The thing is that, see, I teach, I profess in accounts, that's my accounts and economics are my subjects. So I have to be very cautious, I online जब classes कराता हूँ तो मेरे को एक बड़ा screen सामने रखना पड़ता है monitor का, so I can see all my students on the screen. At the same time, कभी जब class में अगर lectures देते हैं, you have to read their faces. अब ये हमारे ऊपर आ गया है कि हम उसको अप्रोच करें. अब कैसे अप्रोच करें, तो हमको पता चलना चाहिए. We should understand that the student has not understood what I'm trying to say, and you have to be aggressive, not going and hitting that guy, but उसको पूछना चाहिए कि I know you did not get this my point. बोलो क्या तकलीफ है इसमें, क्या नहीं समझ में आया. That's the first point. The second point is you have to be ready and of course well versed with your subject also, that you should be able to handle it in a different way. You should be ready with the 3 or 4 methods or styles or something like that, so that you understand that guy or that girl कि ये इसको क्या समझ में आ रहा है और इसका समझ का क्या लेवल है. जरूरी नहीं है कि हमने उसको जो बोला वो उसको समझ में आ रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है बिल्कुल. वो हमारे पास, एंड
सर एक बात और बोलूंगा कि दे विल नॉट कम टू यू, रिमेंबर दिस, दे विल नॉट कम टू यू। हम जब बच्चे थे हम टीचर्स के पास जाते थे, आज हम बड़े हैं हमें हमारे बच्चों के पास जाना पड़ेगा। जी अगर हम उनकी बातें समझते हैं, वी हैव टू, वी मस्ट एक्चुअली, ये तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मस्ट के नीचे एक रेड अंडरलाइन भी होना चाहिए कि वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर स्टूडेंट्स और इफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, क्योंकि वहीं पर तकलीफ आ जाती है, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन वहीं से शुरू करना है। वी हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर। व्हाट आई डू, लाइक जैसे मैं वहां पर गया, उसको बोला अरे ये तेरे को नहीं समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि ये नहीं, यू, आई नो यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, नहीं नहीं सर आई गॉट इट, आई गॉट, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी शाय, वो नहीं बताएगा सबके बीच में, ही डजंट वांट टू लुक स्टूपिड। ऐसा जरूर सी, बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं कभी कभी जो जी अच्छे स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ आते, वो भी, यू नो, you must have faced this kind of a mental state where sometimes for few seconds, 2 3 4 5 seconds, you go blank. And when I'm saying somebody is giving a lecture or somebody is explaining to you, you go blank, and that is very normal, absolutely normal. But वहीं पर अगर वो ब्लैंक हो जाता है तो वो उसके लिए वहां पर आगे जाके कनेक्ट करने में बहुत तकलीफ होने वाली है। जी तो अगर वो बहुत ही अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट भी है, ही इज गोना फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट और रिकनेक्ट, बिकॉज वो सीख रहा है, वो सीख रहा है। आई एम ओके, कोई तकलीफ नहीं ना, हाँ। तो या यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि अगर इफ ही इवन इज अ गुड स्टूडेंट, लड़कियां होती हैं तो आजकल की लड़कियां तो बहुत ही बिंदास है, कोई इशू नहीं है, लेकिन देर आर फ्यू स्टूडेंट्स और फ्यू गर्ल्स हु फील शाय, दे डोंट कम, सारे क्लास के बीच में नहीं आएंगे। अगर ग्रुप ट्यूशन चल रहा है ऑनलाइन तो सारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, वो नहीं बोलेंगे, दिस हैपन्स, नॉर्मल। बट देन यू हैव टू इंसिस्ट, यस दैट इज द सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू इंसिस्ट, क्योंकि आपको आपके अनुभव के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि इसको नहीं समझ में आया है ये, यू हैव टू फॉलो हिम कि भाई नहीं आपको ये नहीं समझा है, देन यू आस्क हिम क्या नहीं समझा बताओ मेरे को, एंड आई अश्योर यू सर वो आपको आपका प्रॉब्लम बताएगा, बस, बिकॉज विद द एक्सपीरियंस, सी, आप कैसे भी हो, आप बड़े हो, यू नो मोर, यू हैव अ बेटर नॉलेज, आप उनसे ज्यादा जानते हो। तो मैंने कभी बहुत मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा है, घरों में भी मैंने देखा है कि बच्चे, चिल्ड्रंस डोमिनेट, लाइक मॉम को कुछ भी बोल देते हैं, ये है वो, अरे तेरे को पता नहीं चलता, सो मॉम टेक्स इट लाइन डाउन, तो ठीक है यार बच्चा है, एक्चुअली दैट शुडंट हैपन, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड से रेसिस्ट, प्यार से उसको समझाओ कि ऐसा नहीं है, वी ऑल्सो नो इट। अगर तकलीफ यहाँ पर शुरू हो जाती है सर, व्हेन यू लाई डाउन टू योर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आज मूड नहीं है पढ़ने का, आप कुछ पढ़ाओ मत, आज कुछ कहानी करते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं, see once in a while that is fine, but it happens frequently, oftenly, then it's bad. It means that they are dominating you and you are getting carried deviated away. from your yeah topics and all that. तो यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा, you have to start communicating with them, they will not communicate with you, you have to start it, और आपको बताना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई है, एंड यू हैव टू टॉक, और वहां से दैट कम्युनिकेशन विल बिगिन। Okay. और ऐसे ही फिर दैट द डे विल कम दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू देम कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। यस सर प्लीज। Yeah. Uh,
one interesting thing that you said is uh, in your earlier answer also, in the next one also, and here also, in different ways you said, I was realizing, so although you are a professor of accounts and economics, there are a lot of other parallel ways of understanding, means of teaching, means of interaction, communication, uh, confidence, uh, depth of understanding, a term that you did not use but that came to me. So when I have a problem and I am very shy and you ask me and I refuse the first time and you insist, and once you insist then I open up and then you realize it's a very good question. Like there is a depth of there are many ways of questioning things. So I would know because every week I do a podcast almost. So I understand that where I am operating from in my mind. There are superficial questions. I can ask you questions about how to run a class properly, how to maintain discipline. I don't go down that route because that those are answered in many ways in different forms by different teachers and parents very often. But what we are struggling with is the real connect between a teacher and a student. Whether online, offline, that is unimportant. Uh, there can be different methods of reaching out, but what you spoke about is quote unquote what the HR calls soft skills, confidence and presentation and the way. So my question to you is these aspects, many teachers don't have time to cover these aspects because we are so loaded with getting the exam mentality on that all our lessons are mainly about these except for a few teachers who may be good at this and they teach by example rather than specifically going into a student's life and saying that this is how you should be confident. Uh, my question is in a day and age when I'll give you an actual example. So a couple of times it has happened when I'm talking to youngsters, they come across very confident. But the moment you put up a real question which makes them vulnerable, they immediately dissolve. So that confidence वाला जो पूरा वो screen है वो खत्म हो जाता है and they say no no I am not comfortable with this or I don't know this. Look I don't know this in detail. And that time they are open and they will end up saying things that you did not expect them to. So when you say कि अरे दिखने में तो ये लड़का ये लड़की जो भी है वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है but जब when they come to talk to you and you have just put up a very sensitive question or way of presenting the thought, at that point they realize uh, they may not know this much or they are very vulnerable about confidence, presentation, their language skills, uh, about the impending threat of technology. Even they are facing those worries. Not to mention anxiety, depression, social anxiety. They have a मैंने पूरा एक दुनिया खोल दिया है अलग अलग तरीके के मेंटल मेकअप का. हाउ डू यू I want you to spend a little time on giving us an example if somebody is very shy or a little more sensitive than normal or else unsure about presenting or even if they know the subject they are unable to express themselves. How do you deal with that communication aspect? If you could give a real time example where you faced with one particular student, you don't need to take names obviously, but something that helps us understand how a teacher sees this challenge because you may have 50 students. Obviously, you can't handle all 50 with this kind of thing. But one or two students who are facing this and who seem to have a very strong problem regarding these softer aspects, how does your experience as a teacher help? And can you guide us with a story, example, anecdote, whatever? Sir, uh, this
building a confidence in a student Yeah. who is actually a very shy and very like introvert like uh, is actually a real challenge for any teacher. uh, and these kind of students are not very common. See, they are like they stay aloof. That's the first thing. They don't get into touch with the students or friends, or they have little friends, one or two ऐसे ही कुछ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एंड बाय वाले स्टूडेंट्स जो अपने दोस्तों के साथ अपने पीयर्स के साथ भी ऐसे ही उन लोग काम करते हैं, स्टडी लाइक दैट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में ले आना बहुत मुश्किल है, और it tests your patience and it tests your ability and it is a challenge in fact. एक स्टूडेंट था मेरे पास आया था, ही वाज अ ICSC स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्कूल का था। ये 10th क्लियर किया और 11th से वो मेरे पास आया। ISC जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, बट इट्स लिटिल लेंदी। अकाउंट्स और उसके इकोनॉमिक्स के जो बुक्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे से बुक्स हैं। कभी कभी तो मुझे भी ऐसे लगता है कि इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतना सारा वजन इन लोग डाल देते हैं। टीचिंग की बात चल रही है तो सर एक थोड़ी सी एक लिबर्टी ले रहा हूँ सर, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो पहले से क्लर्क को बनाने के लिए बना हुआ है। इट इज़ नॉट मेड फॉर मेकिंग साइंटिस्ट्स एंड पीपल हु क्रिएट, लाइक क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है वो एक ऐसे लोगों को बना के छोड़ देता है जिसको डिग्री तो मिल जाती है लेकिन उसका कोई नॉलेज नहीं रहता, किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। जैसे सर अभी आपने बताया व्हाट यू जस्ट सेड नाउ, कि हम उसको किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा ज़्यादा उसके डीप में अगर जाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो दे लूज कॉन्फिडेंस, मतलब उनके पास फिर उनके पास जवाब नहीं होता है, दे गिव अप। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि मार्क्स। अब वो मार्क्स के लिए हर कोई भी बच्चा बैठ के रट्टा मारता है। कुछ बच्चे रट्टा मारने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एग्जाम के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले पढ़ते हैं और बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टा नहीं मार सकते, उन्हें याद नहीं रहता, उतनी अच्छी उनकी मेमोरी नहीं होती है शायद। नॉर्मल अपन उसको साधारण मतलब बोलते हैं कि मीडियम, लाइक स्टडीज में। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ सर कि हम वो ग्रेड के ऊपर से वो बच्चे का ग्रेड करते हैं, ये कहाँ है? अगर उसके ज्यादा परसेंटेज है तो हम बड़े अहोभाव से, हो वेरी नाइस। अब पार्टी में कभी जाओगे और वो रिजल्ट विजल्ट आए होते हैं, तभी उसी वक्त अगर कोई बच्चा 90%, जो आजकल नॉर्मल है, 94-95% ले आता, तो हम उसको बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं। और वही बच्चा 60-70% वाला है तो हाँ ठीक है ठीक है। बट हमारा इवैल्यूएशन का, उस बच्चे का इवैल्यूएशन का जो तरीका है वो गलत है। सर वो ICSE हाँ वाले सर। स्टूडेंट, हाँ, एक स्टोरी। यस यस यस, आई एम नॉट ड्रिफ्टिंग सर। हाँ, ओके, नहीं नहीं, आई एम वेरी क्यूरियस। नहीं नहीं नहीं, मैं वो ये मैं उसके पहले ये कंसंट्रेट कर रहे हैं। छोटा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग इन अ मच बेटर। अपने जो व्यूअर्स हैं आपके, जो है यस वो यस, ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। श्योर श्योर। सर ये जो चीज होती है कि बच्चा अगर कम मार्क्स लेके आता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली इग्नोर इज नॉट राइट वर्ड, बट हम उसको ऐसे तो ठीक है चलता है। हाँ लेकिन सर हम यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं सर, कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ SSC पढ़ा था, जी, और हमारे अदानी जी भी शायद कुछ डिग्री विग्री उनके पास नहीं है, बट ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया टुडे। ट्रू। तो ये बताता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है। अब ये बच्चा जो था वो आया मेरे पास, एंड
उसकी मम्मी काफ़ी वरीड थी, लाइक कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। ही गॉट सम 65%, वो बहुत कम है। आईसीएसई में बहुत कम कम समझे जाते हैं 65, क्योंकि सारे बच्चे 80 और 90 के बीच में खेलते हैं। तो उसकी मम्मी बहुत टेंस थी, एंड शी वाज लाइक मतलब प्लीड तो नहीं बोलूँगा, बट शी वाज रिक्वेस्टिंग, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, सर इसका ध्यान रखना, ये बहुत बहुत डरता है, बहुत नरम है, इसको ये है वो है, ऐसा वैसा सब मेरे को बोला था उन्होंने। तो एंड दैट वाज अ पर्सनल ट्यूशन, एक्चुअली 1-to-1 ट्यूशन था। तो हमने जब स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ही वाज सो स्केर्ड। मैं उसको कभी बोलता था, अकाउंट्स में कभी बोलता था कि भाई यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स को मेरे, कि आप जब घर जाते हो घर से ही लाइन ड्रॉ करके आओ, तो यहाँ पर फिर क्लास में आपको, यू डोंट वेस्ट टाइम इन ड्रॉइंग लाइंस एंड ऑल, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है 11th-12th में। तो एक दिन वो लाइन ड्रॉ करके मतलब भूल गया, ही डिडंट कम, मतलब नेक्स्ट जब बोला था उसके दूसरे ही दिन वो शायद ऐसे ही चला आया। तो मैंने उसको बोला, भाई तूने लाइन क्यों ड्रॉ नहीं किया है, मैंने कल बोला था। तो वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो ऐसे पीछे चला गया, जैसे कि आई वाज गोइंग टू हिट हिम। अब पता नहीं कि वो क्या चीज थी उसके, मैंने उससे कभी पूछा नहीं, बट आई रियलाइज्ड इट। तो मैंने उसको बोला, सी इट्स ओके, देखो अगर आप लाइन ड्रॉ करके आते ना, तो हम सीधे सम शुरू कर सकते थे, कोई बात नहीं, कोई आराम से यू ड्रॉ, क्योंकि एज सुन एज आई रियलाइज दैट द स्टूडेंट कोई भी है वो तो डर रहा है, तो आई ट्राई टू बी वेरी कंफर्टेबल विद हिम, उसको मैं बताता हूँ कि ठीक है कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत समय होता है, कल तो एग्जाम नहीं है, पूरा साल है, और मेरे पास बहुत समय है, जी। और कॉन्फिडेंस ये रहता है कि धीरे धीरे वो समझ जाएगा। सर ये चीज लाइन के ऊपर से शुरू हुई, नेक्स्ट टाइम से ही वॉज लिटिल कंफर्टेबल, फिर धीरे 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 वो, उसकी गलतियां होती थी, वो गलत करता था, मैंने देखा था कि उसको डांटने से काम नहीं बन रहा है, उसको मैं समझाता था कि बेटा देखो ऐसे करो, ये आपके लिए अच्छा है। और मैं उसको बोलता था कि सी यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ समझ में आ रहा है आपको, यू आर पिकिंग अप, दूसरे बच्चों से आप बहुत ज्यादा फास्ट पिकअप कर रहे हो, ऐसा दैट वे। परहैप्स मेरा झूठ भी बोलना कभी कभी उसको काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा था, आई सॉ दैट। फिर हम लोग ने वहाँ पर उनके जो स्कूल में जो, मतलब स्कूल भी होती, वो स्कूल भी होती है उनकी, तो स्कूल में वहाँ पर तो कुछ पढ़ाते नहीं, गवर्नमेंट स्कूल होती है, तो वो तो ऐसे ही रट्टा मतलब भगाते हैं, मतलब एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश अ चैप्टर इन अ डे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और बोर्ड तो बहुत कुछ पूछती है। तो हम लोग तो धीरे धीरे कर रहे थे, तो उसने मेरे को एक दिन बोला, सर ये ऐसे ऐसे है, तो मैंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, आप 2 दिन बाद फिर से हम लोग बैठेंगे 2-3 घंटे जब फ्री है, विल सिट। तो ऐसे करते 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 इट टुक अराउंड अ मंथ, और मंथ एंड हाफ, ही बिकेम लिटिल ओपन, लाइक तो आके फिर मेरे को बताता था कि आज सर ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसे पढ़ाया, किसी को समझ में नहीं आया, उस तरह की वो बातें करता था। तो मैं उसको समझाता था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, वो वहाँ पर ऐसे ही होता है, इसीलिए तो आप ट्यूशन में आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज। तो फिर कभी बोल देता था कि सर ऐसा नहीं, उसने तो ये खत्म कर दिया, आप भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं होगा बेटा। ऐसा ही हुआ तो फिर हमारे में और उसमें फर्क क्या है, तो ये एक्सक्यूज मी, ये चीजें उसमें कॉन्फिडेंस ला रही थी। फिर उनको धीरे धीरे मैं ये भी समझा रहा था कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपका पोर्शन बहुत वास्ट है, उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। तो फिर थोड़े दिन ये चला, तो वो कुछ होमवर्क करके नहीं आता था, प्रैक्टिस के नाम पे भी कुछ करता नहीं था। मैं इसको बोला, भाई ऐसा ऐसे कैसे चलेगा बेटा, आपको तो ये करना पड़ेगा।
बोला क्या तकलीफ हो रहा है, आप मेरे से बात करो। चुप, खामोशी। मैं बोला आपने, आप क्या कर, मतलब आपने कुछ प्लान किया है, आप कैसे करोगे ये सब, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स भी है, और दूसरे भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है। सॉरी। तो वो मेरे को बोल, कुछ नहीं, जवाब ही नहीं, कोई कोई चीज नहीं, इज लाइक एकदम चुप। अब ऐसे सिचुएशन में बहुत तकलीफ होती है। तो आप उस वक्त पेशेंस से, यू हैव टू वर्क विद पेशेंस, क्या करना है, नहीं करो, ठीक है, कुछ बोलो मत। आई डेंट से, कभी कोई उसको चिल्लाया नहीं, कभी कुछ, अरे तेरे को आज तो मैं, बहुत सार ऐसे टीचर्स करते हैं, 5 बार लिखने को दे दिया, 10 बार लिखा, 25 बार लिखने को बोला, सब होता है ऐसा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, 2 दिन गए, मैं बोला यार तू एक काम तो कर। फिर मैंने उससे बहुत फ्रेंडली वे में उसको पूछा, हु इज योर फेवरेट हीरो, हु इज फेवरेट हीरोइन, हु इज योर प्लेयर। फिर मैंने उससे पॉलिटिक्स थोड़ा सा डिस्कस किया, इधर उधर की बात की। फिर हल्के से मैंने उसको बोला यार तू एक काम कर, तू कुछ प्लान तो बना यार, यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली। जो मैं बता रहा था ना आपको कि हमको हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ रिस्पेक्ट से रहना पड़ता था, इन लोगों के, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनसे भी हमको रिस्पेक्ट से रहना पड़ता है। तो जी उनको जी। समझाया कि बोला भाई तू प्लान बना इसका। सर ये इस तरह का हमारा कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन हुआ करता था। धीरे 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 धीरे, वन डे उसने मेरे को बोला सर ये मेरा प्लान है। आई वॉज इंसिस्टिंग, मैं उसको फोर्स नहीं किया, बट आई वॉज इंसिस्टिंग कंसिस्टेंटली, मैं उसके पीछे लगा था कि घर जाके आप क्या करते हो। अब सारे स्टूडेंट्स तो बताएंगे नहीं उनको, ही वॉज 16-17 ईयर्स, एडोलसेंट है, तो वो अपनी दे, उनकी एज ही ऐसी होती है कि वो अपने लिए प्राइवेसी ढूंढते हैं। तो दे विल नॉट डिस्क्लोज देयर प्राइवेट थिंग्स। प्राइवेट कुछ नहीं होता है, लेकिन वो सोचते हैं हमारा ये प्राइवेसी, प्राइवेट एरिया है, हमारा जोन है, इसमें हम किसी को आने नहीं देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप मेरे को बताओ कि मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से धीरे 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 आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ये, हल्के हल्के से उसको आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा। आपको नहीं भूलना है कि सी, आई कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट व्हाट वाज माय टारगेट, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली याद दिलाना पड़ा कि भाई आप, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट थिंग हैपेंड वाज ही ब्रॉट द प्लान। ठीक है, मैंने उसमें से उसको बोला नहीं सही है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दे, ये प्लान है ना, ये फाइनल प्लान नहीं है, क्योंकि आपको ये प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, यू हैव टू रिव्यू इट। कभी, जब टेस्ट हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाने दो, आपको समझ में आएगा कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हो वो सही है या गलत है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। 11th में बहुत अच्छे नंबर लेके आया, क्लास में ही वॉज हाइएस्ट इन अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स में कोई और बंदा आया था, बट अकाउंट्स में उसको हाईएस्ट आए थे। तो उसके सर उसको पूछने लगे कि ये कहाँ से पढ़ता है और किससे पास ट्यूशन जाता है, ये वो सब उसको पूछने लगे। तो उसने बोला नहीं मैं कहीं नहीं जाता, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज सर। क्योंकि वहां पर, यहाँ पर ऐसा माहौल होता है ये स्कूल्स में कि 11th और 12th आपको उस सर के पास जाना होता है या ट्यूशन के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो सर लेते हैं, वो उनके अकाउंट्स के। तो इट्स अ इनडायरेक्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। तो उसने बताया नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं खुद पढ़ता हूँ। बोला वेरी गुड वेरी गुड। सर वो बच्चा 12th में, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ही गॉट 91 परसेंटाइल इन द 12th। उसकी मॉम और उसके डैड दोनों मेरे घर पे आ गए कि भाई सर, डैड तो उसके ऐसे लग रहा था कि विल ऐसे मेरे पैरों में नहीं गिर जाए। आई वॉज वेरी कॉशियस कि ऐसा कुछ सीन नहीं बने। लेकिन ही वॉज सो थैंकफुल, सर थैंक यू, सर थैंक यू। अब वो बच्चे की लाइफ बदल गई है सर। नाउ दैट गाय, ही इज इन कनाडा, ही इज स्टडिंग, उसके आगे पढ़ाई चल रही है, वो मैनेजमेंट पढ़ रहा है, यहाँ से उसने बीएमएस कंप्लीट किया, और फिर वो गया है अभी कनाडा। अब कनाडा में उसने वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट कुछ पढ़ रहा है। अब साथ में कुछ जॉब भी कर रहा है। अब वो इतना ओपन हो गया है
कि वहाँ की वॉलमार्ट की कंपनी में वो जॉब करने में उसको दिक्कत नहीं हो रहा, कोई शर्म नहीं है, कोई नहीं है, वो बिंदास काम करता है। वो पिक्चर्स भेजते रहता मुझे, सर सी आई एम डूइंग दिस, सर दिस आई एम, यहाँ ये मेरा रूम है, ऐसा, मतलब दैट वे। तो एट द एंड ऑफ द डे टीचर हैज टू बी अ वेरी बिग हार्टेड, बहुत बड़ा हार्ट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कभी इंसल्ट भी कर देता है, कोई करना नहीं चाहता लेकिन कभी कर देता है, वो हमको बुरा भी लगता है, तो वो घूंट हमें पी जाना होता है, दैट इज इट। और उसकी कदर होती है, दे रियलाइज इट वन डे कि हमने ये गलत किया था। बट अगर मैं उसके सामने रिटेलिएट करूंगा तो वो तो फिर आप समझ लो क्या हो सकता है, फिर वो तो नहीं सीधा नहीं, गड़बड़ हो जाता है। बट देन दिस इज इट। thank you. This has been a very wonderful kind of podcast. It actually reminds me of the lectures I used to attend during school. It is kind of slowly getting into the heart of the matter and then making the subject matter very interesting. With a story to end with, it's been a joy and a kind of a discovery of sorts. How how we are in safe hands as far as teachers and teaching is concerned, irrespective of the invasive nature of technology that we are seeing. Uh, for me, this has been quite an experience, completely different from the other podcasts I've had. थैंक यू सर। Thank you for spending the time and taking us through the process of how you've been engaging the next generation in knowledge. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक Yes, sir. यू।